Hello, good evening everyone present here. Myself, Pooja Malkar, a team member of Kash Foundation. Welcome you all to the 14th webinar on 4th day of 5 days health series of Kash Foundation under the banner of Kash Swasth Mantra. On 7th and 8th September 2020, we had Dr. Suryabhan Dongre who gave us an insight on the topic of food poisoning in India, pesticides and its effects on humans. Yesterday, 9th September, we had Dr. N.M. Kamath sir for a talk on fasting is fast. Today, that is 10th September 2020, we are hosting our 40th health webinar on exploring the application of naturopathy and Ayurveda. To begin the session, I would like to invite Dr. Avkash Dadav, founder trustee of Kash Foundation, to give information regarding Kash Foundation. Over to you, Doctor. Over to you, Avkash sir. Kindly allow me to start my video. Can start your I cannot video. start my video. Thank you. On behalf of Kash Foundation, I welcome you all on the second last day of this health web series. Kash Foundation is a Mumbai-based NGO. It works on E2H2, education, environment, health, and heritage. And we are equally honored to have Dr. Kamath with us, who will be having his concluding remarks. On behalf of Kash Foundation, I welcome. And I'm sure his insight, his session will definitely add to our understanding of naturopathy, food, and medicine. Welcome to you, Dr. Kamath. Over to you, Pooja. Now I would like to invite Renuka Vyas, Joint Director of Kash Foundation, to brief you about Kash Swasth Mantra. Over to you, Renuka. Thank you, Pooja. Welcome to all of you on 14th webinar of Kash Swasth Manthan. Kash Swasth Manthan is a vertical of Kash Foundation which provides services to the society in the various fields. Kash Swasth Manthan is actively involved for the benefits and self-development of each and every individual of the society, whether it is poor, middle class, or rich. Its main aim is to provide and promote the best and easiest affordable services in the field of nature cure for eradication of various ailments without medicine but with the help of Mother Nature. Kash Swasth Manthan is a group of field of alternative therapies, wherein to fulfill the dream, they work selflessly and happily with only expectation of healthy and happy society. Thank you all of you to joining us. Over to you, Pooja. Thank you. Thank you, Renuka. Now I would like to invite today's speaker, Dr. N.M. Kamath sir, for the 4th day of our 5th day health series. Dr. Kamath sir is ND International Institute of Natural Therapy, Mumbai, a DNYS All India Nature Care Foundation, New Delhi, and MD in Alternative Medicine from the Indian Board of Alternative Medicine, Kolkata. He is also a member of Shantiram Trust.
it takes lecture on vegan diet, detoxification, and other allied subjects for the students to Tilak University, Pune. He is renowned as a healer and is specialized in the treatment of both curable and the so-called incurable disease too. Now, healer N.M. Kamath sir will speak on food as a medicine and healing power of vegetarian food for the next 20 to 25 minutes. Over to you, Kamath sir. Yeah. Good evening, everybody. Yesterday we talked about fasting, a part of nature cure. Sir, we cannot see you. Yeah, 1 minute. 1 minute. Yeah. Now, yes. Now can you see me? Yes, now sir. Yeah. Okay. Now, yes. Yesterday I spoke about fasting as a therapy. Now, this is part of naturopathy. Now, what is naturopathy basically? It is food as medicine is one part. There are many other things. What we do is we have a vegan diet, exercise and relaxation. In the vegan diet, what we do? We try to complement the deficiencies. That means we first detoxify you, then rejuvenate you. That is, we correct your deficiencies. जो अभाव है, जो न्यूट्रिएंट का जो अभाव है, तो उसका जो है हम आपको जो है सप्लीमेंट्स दे देते हैं इन नेचुरल फॉर्म. तो ये जो है असर करता है, इसके लिए इसको फूड एज मेडिसिन बोलते हैं. ये मेडिसिन से भी फास्ट है, तेजी से होता है और परमानेंट है, और शरीर के लिए भी जो है इसका असर आसानी से होता है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. इंग्लिश में एक कहाव है, यू आर व्हाट यू ईट. जैसे अन्न वैसे मन. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स these are the properties of the food that you have eaten. हम जो है नेचुरोपैथी में फूड का क्लासिफिकेशन करते हैं. एक बाजू में अल्कलाइन फूड्स और एसिडिक फूड्स, दूसरे बाजू में सात्विक खाना, राजसिक खाना और तामसिक खाना. खान पान में जो है हम आपको पिष्ट पदार्थ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसका ग्लूकोज तैयार होता है. प्रोटीन देते हैं, जो प्रोटीन जो है जिसका अमाइनो एसिड एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड होता है शरीर में पोस्ट डाइजेशन. और जो है आपको जो है तेल, घी वगैरह जो हम जो है सिग्ध पदार्थ बोलते हैं, फैट्स, उसका जो है लाइपिड्स जैसा कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स है वगैरह जो है उसका एंड प्रोडक्ट हो जाता है. अभी कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये हमारा विषय है. और क्यों खाना. आज हम सिर्फ जो है हीलिंग पावर ऑफ फूड्स, क्यों खाना, क्या खाने से क्या आपको अपने को फायदा मिलता है, ये हम देखेंगे. जैसे कुदरत ने जो है हमें सृष्टि किया, ऊपर वाले ने, तो उन्होंने जो है हमको जो है जैसे हर एक जो है जीव जंतु को जो उन्होंने एक डिसिप्लिन बनाया, वैसे ही जो है हमारे माने मानव जाति को फलाहारी बना दिया. उनको सीजनल और रीजनल फल खाना है, विच आर जूसी एंड पल्पी, विच आर रेड, येलो एंड ऑरेंज इन कलर. ये फल खाना है. और हम जो है फल घर में ले आते हैं, उसको पकाते हैं, जूस निकाल के उसका शक्कर डालते हैं, उसका पूरा मर्डर कर देते हैं. तो हम हमेशा बोलते हैं रॉ फूड इज गॉड्स फूड और कुक फूड इज डेविल्स फूड. हमें एटलीस्ट 50% कच्चा खाना चाहिए.
विदाउट प्रोसेसिंग, और बाकी 50% कुछ खाएंगे, वो चल सकता है फॉर हेल्दी पर्सन। बट बीमार आदमी को जो है हॉस्पिटल में जो है हमारा जो डाइट स्ट्रिक्ट होता है, 1 महीना भर जो है रॉ ही चीज़ हम देते हैं ज़्यादा करके, जूसेस होते हैं, सैलड्स होते हैं, रायता होता है, वगैरह वगैरह। अभी आदमी बीमार भी पड़ता है खाने की वजह से। ओवर ईटिंग और ग्लटनी इज ए सिन विच कैन बी कंपेयर टू ए रेप और ए मर्डर। ये गांधी जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये बात से मैं भी सहमत हूँ। ग्लटनी माने खाओ जिसको बोलते हैं हम, या मराठी में हावरटपना, इससे जो है आदमी बीमार पड़ता है। तो ये विषय में जो है कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना और क्यों खाना, ये जो चीज़ भी आ जाती है। हमको जो है अगर समझो 4 रोटी खाने की भूख है, एक तो पहली बात है जब भूख लगता है तभी खाना, जब भूख नहीं लगता है, खाने का टाइम है, हो गया है, इसके लिए नहीं खाना। भूख लगती है तब खाना। और जब 4 रोटी खाने की भूख है तो 2 रोटी सिर्फ खाना, 1 रोटी की जगह पानी के लिए और 1 रोटी की जगह हवा के लिए। ये बैलेंस्ड होता है। खाने में क्या लगता है हमको, ये पिष्ट पदार्थ लगता है, प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लगते हैं, फैट्स लगते हैं, विटामिन लगते हैं, खनिज पदार्थ है, मिनरल्स लगते हैं। तो हर चीज़ जो है हमें जो है हमारे आहार से ही जो है मिलता है। आहार से जो नहीं मिलता है वो किसको नहीं मिलता है? जो मैगी नूडल्स खाता है, बर्गर्स खाता है, पिज़्ज़ा खाता है, उसको जो है मिनरल्स का जो है ऑलवेज कैल्शियम डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी होते रहता है, आयरन डिफिशियंसी वगैरह वगैरह। तो हमें जो है स्वाभाविक खाना में नेचुरल फूड्स जो कुदरत से जैसा मिलता है वैसे ही खाना जरूरी है। बेस्ट क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स हम जो किस में मिलता है, वो राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, इसमें जो है ये हमारे जो सीरियल्स हम जिसको बोलते हैं, इसमें हमको पिष्ट पदार्थ मिलते हैं। मगर ये सीरियल्स जो है ये एसिडिक होते हैं, और उनमें से महाराष्ट्र के अंदर जो है ज्यादा करके लोग, नॉर्थ इंडियंस मेजॉरिटी गेहूं के ऊपर जो है जीते हैं। इन सब में निसर्गोपचार में बोला जाता है व्हीट माने गेहूं, गेहूं में सबसे ज्यादा ग्लूटेन है और इसके कारण कब्ज होता है। तो हमको जो है कम से कम खाना चाहिए। व्हीट माने सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं एंड प्रोडक्ट्स जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, बिस्किट, केक, टोस्ट वगैरह वगैरह, ये भी हमें नहीं खाना है। हम बाजरा खा सकते हैं, नाशनी खा सकते हैं, ज्वारी खा सकते हैं, क्योंकि नाशनी में और बाजरे में आपको बहुत बड़े प्रमाण में कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, ये चीज मिलती है। कैल्शियम जो है हर एक एक्टिविटी के लिए शरीर में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। 45 के बाद लेडीजों को जो है जब ये महीना रुकने की जो टाइम आता है, प्री मेनोपॉजल स्टेज में जो है उनको जो है हाथ पैर दुखना वगैरह वगैरह ये सब सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको जो है तिल है, तिल का जूस है, नाशनी है, नाशनी का जूस है, बाजरी है, बाजरी की रोटी है, राजगिरा है, राजगिरा की रोटी है, ये खाना चाहिए। और कैल्शियम के लिए जो है बाकी के जो चीज़ है, जीरा पाउडर पतले छाछ में डाल के जो जीरा पाउडर जो हम कच्ची बियर बोलते हैं, जीरा, अजवाइन, धनिया माने कोरिएंडर सीड्स, इसमें भी जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम है। और सबसे ज्यादा कैल्शियम आपको ड्रमस्टिक्स, जो सिंग जो आता है, ड्रमस्टिक्स लीव्स है, ड्रमस्टिक्स फ्लावर्स है, इसमें सब में बहुत बड़ी मात्रा में आपको नेचुरल कैल्शियम मिलता है। ड्रमस्टिक्स खाली उबाल के खाओ, सांभर में ही बना के डालना जरूरी नहीं है, खाली प्लेन नमक बगैर उबाल के खाओ, उसमें जो है बहुत अच्छी मात्रा, अच्छे क्वालिटी का आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन भी मिलता है। फिर बाद में कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है उससे। कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज जो है शरीर के अंदर जमा होता है और जब भी जरूरत होने पर उसको जो है जलाया जाता है, शरीर जला देती है उसको और उसमें से ऊर्जा पैदा होता है।
जो हमारे हर एक एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हमको जो है पल्सेस खाने पड़ते हैं, कड़धान्य, जैसे चना है, मूंग है, मटकी है, मसूर है, चौली है, राजमा है, वगैरह वगैरह। ये सब जो है पल्सेस हम बोलते हैं, द्विदल धान्य। तो इनमें जो है बड़ी मात्रा में जो है प्रोटीन है। प्रोटीनों में जो है नाइट्रोजन भी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है, जो फैट्स में नहीं होता है, जो मिनरल्स में नहीं होता है। सिर्फ प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन की वजह से, एक्सेस नाइट्रोजन का यूरिया बनता है और पेशाब के रास्ते से वो यूरिया, यूरिक एसिड बन के जो है निकल जाता है। प्रोटीन क्यों जरूरत है? हमारे जो है मसल बिल्डिंग के लिए, हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो है प्रोटीन की जो है, स्पेशली स्पोर्ट्समैन है, फिजिकल वर्कर्स है, उनको प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए। और वेजिटेरियंस के लिए जो है सबसे बढ़िया प्रोटीन है अंकुरित आहार। अंकुरित मूंग है, अंकुरित मटकी है, अंकुरित मूंग है, मटकी है, मसूर है। ये जो है चबा के खा सकते अगर कच्चा खाना है तो। अंकुरित जब हम करते हैं, एक तो जब भी हम भिगाते हैं मूंग, मटकी, मसूर, तो रात को भिगा के रखते, सुबह उसको कपड़े में बांध देते। जो पानी में भिगाया है वो जब भी हम पानी फेंकते हैं, उसको जो पेशाब का जो है बांस आता है, वो क्या होता है, वो एक्सेस नाइट्रोजन सॉल्ट्स उसमें से निकल जाते हैं। उसके बाद में हम कपड़े में बांध के रख देते हैं, दूसरा दिन उसमें अंकुर आता है। जब ये अंकुरित होते हैं तभी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन B12, साइनिकोबालामिन, और विटामिन C बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है, तैयार होता है। इन एडिशन, ये बोनस है, विटामिन C और विटामिन B12 बोनस है। और प्रोटीन भी मिलता है, वो भी डाइजेस्टेड प्रोटीन, आसानी से उसका पचन होता है। वो आपके जो है किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर ज़्यादा उसका बोझ नहीं होता है ये पचन प्रक्रिया में। ये है प्रोटीन्स हो गए। उसके बाद में खनिज पदार्थ, आयरन है, लोहा। आयरन के लिए हम देते हैं लाल कलर का पेरू, पपीता, गन्ना, गन्ने का जूस, आलू जो भी चीज जो हम काटते हैं, लाल भोपड़ा काटते हैं, जो काला पड़ता है, वो उसमें लोहा की मात्रा ज्यादा है। हरी सब्जियां वगैरह वगैरह। और क्या चाहिए अपने को? कैल्शियम की जो है मैंने आपको सोर्सेस बता दिए। और क्रोमियम के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए खास करके जो है क्रोमियम की जरूरत पड़ती है। वो हमको हमारे स्ट्रॉबेरी में मिलता है। स्ट्रॉबेरी के सीजन में रोज का जो है 8 से 10 स्ट्रॉबेरी जो है डायबिटिक पेशेंट ने खाना चाहिए। हम लोग भी खा सकते हैं, मगर डायबिटिक पेशेंट ने जो खाना ही जरूरी है। और कौन से और जो है हम लोग को विटामिन लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी में भी विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये सब विटामिन लगते हैं। तो ये विटामिन B12 जो है शाकाहारी लोगों को खास करके कभी भी मिलता नहीं है। मांसाहारी लोगों को, जो कलेजा खाते हैं, उनको मिलता है, मगर हम शाकाहारी हैं। शाकाहारी लोगों के लिए जो है ये अंकुरित जो है कड़धान्य है, ये जो पल्सेस है, इसको जो कच्चा खाना चाहिए। सैलड बना के खा सकते, उसमें नींबू निचोड़ के, सिंधा नमक डाल के, उसकी रेसिपी जो है बहुत सारी आपको नेट पे मिलेगी। कच्चा खाना चाहिए। रोज का 1 वाटी स्प्राउट्स जो है अपने खाने में होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B कॉम्प्लेक्स के लिए यही लाल, पीला और जो है ऑरेंज, नारंगी कलर के जो जितने भी फल हैं, इसमें आपको सब टाइप के विटामिन मिलते हैं। उसमें एडिशनल हमको जो है जो विटामिन ज़्यादा लगते हैं, वो हम उसको, जो मैंने उसको नाम रखा है एसिस, ACES माने यक्का माने इंपॉर्टेंट कार्ड इन कार्ड गेम। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम। विटामिन ए जो है हमें जो है गाजर में मिलता है। गाजर जो है किस के, उसका जो है हम सैलड बना सकते हैं। चुकंदर खा सकते हैं, अपना वो बीटरूट। विटामिन ए पपाया में जो है, पपीता में भी जो हमको विटामिन ए मिलता है। और ज्यादा करके पीले कलर के जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे लाल भोपड़ा है, इसमें भी हमको विटामिन ए मिलता है। गाजर में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपको, गाजर के 1 गिलास गाजर के जूस में जो है
अप्रोक्सीमेटली 240 मिलीग्राम ऑफ आपको बीटा कैरोटीन मिलता है, उसका 20% 48 मिलीग्राम ऑफ कैरोटीनॉल माने विटामिन ए आपको ओरिजिनल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में मिलता है, जो शरीर आराम से जो है स्वीकार करता है। उसको कोई जो है आपके पाचन संस्था के ऊपर उसका भार नहीं आता है, उसका लोड नहीं आता है, उसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता है, रेडीमेड ये मिल जाता है आपको गाजर के जूस में। ये किसको लेना है? ये जो है 13, 14, 15, 16, 17 साल उम्र के जो है लड़की लोगों को, जिनको पिंपल्स आना चालू हो जाते हैं, मलहम लगा के रेटिनो ए और जो है क्लियरासिल वगैरह लगा के जो है पिंपल्स नहीं होते। तो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी से ज्यादा करके विटामिन ए हो जाते हैं। गाजर का जूस रोज पियो और पेट साफ रखो, तो आपका जो है 8 दिन के अंदर जो है सब क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में विटामिन सी के लिए आंवला, जिसको आंवला बोलते हैं हम, और नींबू में भी जो है मैक्सिमम विटामिन सी है। तो आंवला, उसमें लिमोनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, कैरोटीनॉइड्स है। तो ये जो चीज जो है आपको आपके डेली आहार में होना जरूरी है। घर से निकलने के टाइम, जो जॉब पे जाते हैं, जो सर्विस करते हैं, रोज घर से निकलने के टाइम जो है एक गिलास पानी में, गुनगुना पानी में जो है आधा नींबू निचोड़ के पी के जाना चाहिए। शाम तक आप फ्रेश रहेंगे, थकावट नहीं होगी। जो ट्रीटमेंट के लिए हम गाजर आंवला का जूस देते हैं। उसके अलावा जो है विटामिन सी हर माने सावर फ्रूट जो है, मौसम्बी है, संतरा है, अंगूर है, पाइनएप्पल है, इसमें भी थोड़ी मात्रा आपको विटामिन सी मिल ही जाता है। विटामिन ई में जो है हमको जो है बादाम में मिलता है। बादाम भिगो के उसका छिलका निकाल के आपको खाना है। उसमें का जो है कोलिन जो है बादाम में जो है, जो एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होता है, जो ब्रेन टॉनिक है। ये जो है थ्रू इंटरनेट अनस्टेबल बता रहे, हाँ, तो ये जो है उसका जो है एसिटाइल कोलिन इज अ ब्रेन टॉनिक। तो ये कोलिन जो बादाम में है, उसका एसिटाइल कोलिन शरीर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो विटामिन ई के लिए अखरोट है और बादाम है। उसके अलावा हरी सब्जी जितनी भी है, जो पालक है, चौली है, वगैरह वगैरह, उसमें जो है सब में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको मेथी है, तो आपको विटामिन ई मिल देती है। उसके साथ में विटामिन के भी उसमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और फिर बाद में रहा एस में से ACE हो गया, अभी एस सेलेनियम रह गया। आपको लहसुन, गार्लिक का कल्प बना के जो है, कच्चा गार्लिक तो हम खा नहीं सकते, मुंह में जो है छाले आ जाते हैं। तो गार्लिक का कल्प माने दूध में जो है उसका एक्सट्रैक्ट निकालने का। आधा कप दूध में आधा कप पानी मिलाओ, उसको जो है छोटे से बारीक गैस के ऊपर धीरे आंच पे जो है उसको गर्म करो। वो गुनगुना होता है तो उसमें छोटा सा एक खड़ी शक्कर का टुकड़ा डालो और उसमें 5 कली लहसुन छिलका निकाले बगैर उसको खाली क्रश करने का, जरा फटका मार के, और वो उस पर डाल के दो धीरे आंच पे जो है 1 ग्लास का जो आधा ग्लास होने तक उसको बॉईल करो। उसके बाद में उसको छान के उसमें जो है 1 बड़ा चम्मच शहद, कोंडाघाट शहद डालेंगे और पिएंगे। चॉकलेट कैरेमल जैसा टेस्ट भी होता है, आपको अच्छी मात्रा में जो सेलेनियम भी मिलता है। और ये एसिस क्या करता है, इसका महत्व क्या है? शरीर के अंदर हर सेकंड में जो है सैकड़ों रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, एक प्रोडक्ट तैयार होता है जो शरीर को जरूरत है। दूसरा एक प्रोडक्ट तैयार होता है जो जरूरत शायद नहीं है, उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जरूरत भी हो सकती है, या जरूरत अगर नहीं है वो तो टॉक्सिन बन जाता है, वो जो शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। और वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इनमें से एक प्रोडक्ट जो एक बनता है वो फ्री रेडिकल है। वो जब तक शरीर उसको न्यूट्रलाइज नहीं करता है, उसकी शादी नहीं कर देता है, वो निकलता नहीं शरीर में से। तो उसके लिए जो है एंटीऑक्सीडेंट हमको लेना पड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट में से जो है उसको जो एक पार्टनर मिल जाता है तो वो न्यूट्रलाइज होता है, तो शरीर का जो है एनर्जी वो सैपिंग करना बंद कर देता है। तो ये हो गया ACE and S। फिर लगता है हमको विटामिन D3, D4। D3 इज कैल्सिफेरॉल एंड D4 इज कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये कहाँ से मिलता है? हाँ, मेडिकल स्टोर में मिलता है, मगर हम मेडिकल स्टोर में जाते नहीं, हम खान पान से करते हैं। आप जो है सूर्य स्नान रोज करेंगे
सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में, तो आपको भारी मात्रा में जो है फ्री में D3 और D4 मिलता है। उसके साथ में अल्ट्रावायलेट किरण भी मिलता है, इंफ्रारेड रेज भी मिलते हैं। तो इससे आपको ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। कैल्शियम का जो है मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन D3 और D4 की जरूरत है, तो सूर्य स्नान की भी जरूरत है। हम जो है एसी रूम में सोते, बेडरूम में सोते, एसी गाड़ी में घूमते, एसी ऑफिस में जाके बैठते, तो ऐसे लोगों को जो विटामिन D3 और कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। कैल्शियम और विटामिन D3 जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो आपको फ्री में अगर समझो गोली खानी नहीं है, अगर समझो आप कैल्शियम की गोली खाएंगे, शेलकैल जो मेजोरिटी जो है लेडीज खाते हैं, उससे क्या होता है, उससे अगर समझो आपका खान पान बराबर नहीं है, लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, बाहर का खाना आप खाते हैं, तो आपका थायराइड ग्रंथि जो सही काम नहीं करती है, पैराथायराइड ग्रंथि बराबर काम नहीं करती है। पैराथ हार्मोन जो पैराथायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें D3 और D4 की जरूरत पड़ती है, और वो जो पैराथ हार्मोन के प्रेजेंस में जो है ये मेटाबॉलाइज होता है। तो सूर्य स्नान बहुत ही जरूरी है। फिर बाद में विटामिन D3 D4 हो गया, विटामिन K तो हमने बता दिया, और क्या रहेगा विटामिन में, ए हो गया गाजर, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, और फिर विटामिन B17 नाम का एक विटामिन है जो कोई बताता नहीं है, वो नेचुरोपैथी में हमको बताया जाता है। वो विटामिन B17 को हम लैक्ट्रेल बोलते हैं। ये हम लोगों को इसमें मिलता है, व्हीट ग्रास में मिलता है। व्हीट ग्रास इज नोन एज ग्रीन ब्लड, व्हीट ग्रास जूस इज नोन एज ग्रीन ब्लड। व्हीट ग्रास जो है 8th डे ग्रास खाना जरूरी है, 8वां दिन का ग्रास खाना जरूरी है, क्योंकि कैंसर पीड़ित लोगों को या कैंसर जिसको होने की चांसेस है, डाउट है, इन लोग भी जो है खा सकते हैं। वो जूस पीने से गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, पेट में जो है नौशिया होती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, उल्टी भी आ सकती है। मगर जो है आप जो है वो 8वां दिन का जो है गेहूं का जवारा चबा के खाएंगे, देखो मेरे मुंह में से पानी आना चालू हो गया, वो बबलगम जैसा उसका टेस्ट है। वो चबा चबा के जूस पीते जाने का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और उसमें आपको उसको ग्रीन ब्लड बोला जाता है। आयरन भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, विटामिन B17 भी मिलता है, और बहुत सारी जो है चीज जो उसमें मिलते हैं आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली B17 लैक्ट्रेल भी जो है इसमें जो है मिल जाता है, जो कैंसर के सेल्स को जो है वो खत्म कर देता है। अच्छा, दूसरी बात है अपना जो रिक्वायरमेंट है, कैरेट्स में जो है बीटा कैरोटीन है, उसमें मेरा पैड जो दे दो, बीटा कैरोटीन है, और एक पर्टिकुलर जो है अपना कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल्स है जो उसको हम बोलते हैं क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स और क्रूसिफेरस वेजिटेबल फैमिली। क्रूसिफेरस वेजिटेबल फैमिली में जो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, अपना ग्रीन पीस, पठाना, ब्रोकोली, बीन्स, फ्रेंच बीन्स, टर्निप्स माने नवलकोल, ये सब चीज आते हैं। ये चीज में जो है ऑर्गेनिक सल्फर है, ये चीज हमें खाना मना है, क्योंकि जब भी हमारी प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, हमारे ब्लड अपनो जो है CBC का टेस्ट करते हैं तो उसमें जो है डिफरेंशियल काउंट में मोनोसाइट्स वो जो 0 होना चाहिए उसमें 2%, 3%, 4% वो बढ़ते जाता है। एलोपैथी में 0 to 10 वो नॉर्मल समझते हैं, हमारे नेचुरोपैथी में अगर 1 भी है तो इसका मतलब आपका प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका मतलब यू आर एक्सपोज टू डिजीज, आपको कभी भी जो है रोग करीब आ सकता है। तो हमको क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स जो है कैंसर के लिए जो अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है फाइट करने के लिए, मगर आपका इम्यूनिटी लो है तो वो अपने को खाना नहीं है। आपका थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो खाना नहीं है 3 महीना 6 महीना, जब तक आपका वो लेवल पे नहीं आता है। अच्छा, कैरेट्स में बीटा कैरोटीन है, ये जो हमने बता दिया, और बाकी का इसमें जो है बीटा कैरोटीन के अलावा, अपना कैरेट के अलावा बीटा कैरोटीन आपको पीला कलर का फ्रूट जो है पपीता,
पपीता में भी जो है आपको बीटा कैरोटीन मिलता है। फिर विटामिन सी के लिए मैंने आपको बताया कौन सा, आंवला और नींबू। उसके अलावा सफरचंद, सफरचंद जो खाना है छिलके के साथ में खाना है। लोग छिलका निकाल के खाते, छिलका निकाल के खाएंगे तो एप्पल का जो है मजा गया, क्योंकि उसके जितने भी है, कोलिन है, पेक्टिन है, विटामिन ई है, ये सब जो है उसके छिलके में है। तो धो के जो है आपको वो खाना है। फिर आलमंड्स और वॉलनट्स, अखरोट और बादाम, इसमें जो है विटामिन ई है और कोलिन है। कोलिन मैंने बताया एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होता है और एसिटाइल कोलिन ब्रेन टॉनिक है। कर्ड्स, बटर मिल्क जो हम लेते हैं, खट्टा दही नहीं, उसमें जो है लैक्टोबैसिलस रहते हैं। हम लोग काला अंगूर खाते हैं, ब्लैक ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स जो ताजा जो है उसमें रिजर्वेट्रॉल है। अभी रशिया में रिजर्वेट्रॉल के ऊपर जो है काफी चल रहा है, माने रिसर्च चल रहा है। फिर गार्लिक में मैंने बताया सेलेनियम है जो एंटीऑक्सीडेंट है। टमाटोज, टमाटो में जो है टमाटो है और पापनस है और एक दो फ्रूट है जिसमें जो है आपको भारी मात्रा में जो है लाइकोपिन मिलता है। टमाटर है, लाइकोपिन इज मोर पोटेंट देन विटामिन सी, विटामिन सी। तो आपको ये चीज जो है लाल कलर के टमाटर कच्चे खा सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता जो है, कड़ी पत्ता जो है हम जो है बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। रोज कड़ी पत्ता का चटनी बना के जो है आप पतले छाछ में डाल के पिएंगे, जीरा पाउडर डाल के पिएंगे, जिसका बाल जड़ता है बाल आना चालू हो जाएगा। इससे जो है इसमें कोइनिगिन नाम का जो एक तत्व है जो माइक्रो सर्कुलेशन, जो अपना बाल में जो सर्कुलेशन कम होता है, सर तक नहीं जाता है, क्योंकि अपने रहन सहन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये आप ये जो है अपना चटनी डाल के जो है छाछ पिएंगे, पतला छाछ रोज का, तो महीने 2 महीने में आपका जो है झाड़ उगना माने बाल उगना चालू हो जाता है। खेती जो है साफ हो गई है, खेती भरना चालू हो जाती है। अलसी सबसे बढ़िया। अभी जो है जब मैंने जो है 2002-2003 में जब अलसी के बारे में मैं बोलता था लोगों को, पेशेंट लोगों को देता था, तभी अलसी लोगों को मिलती नहीं थी। मैं दादर से 2.5 किलो अलसी लेके आता था, तभी 17 रुपये किलो के हिसाब से मेरे को मिलता था, 17 रुपया किलो। आज 20 रुपया 100 ग्राम लेते हैं। अलसी जो है कब्ज के लिए सबसे बढ़िया है। दोपहर का खाना और रात का खाने के पहले आधा घंटे पहले 1 चम्मच अक्खी अलसी निगलना है, आधा घंटे के बाद खाना खाना है। वो पेट के अंदर जाने के बाद वो फूल जाती है, फूलने के बाद खाना खाते आप, खाना में जो है मिक्स हो जाती है। वो जब आपके कोलॉन से जो स्टूल्स पास होता है, जब अपना जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है, मगर वो जो है उसका जो है अपना स्टिकी मटेरियल है, तो वो जो है वो अपना मूवमेंट जो है आसान कर देता है और जो है कब्ज होना कम हो जाता है। और अच्छी बात यह है, लोग जो है कायम चूर्ण लेते हैं, कायम चूर्ण गलत है। हरडा लेते हैं, इन दोनों में टैनिन है जो अपना हार्मफुल है, जो नुकसान कर सकता है। तीसरा जो है इंग्लिश दवाइयाँ ले लेते हैं, डल्कोलेक्स वगैरह, वो केमिकल है, वो भी नुकसान कर सकते हैं, रोज तो नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात है, लोग जो है क्या खाते हैं, वो अपना एलन बरीज का कौन सा इसाबगोल, इसाबगोल में जो है एक बार आपको आदत हो गई तो इसाबगोल आपको लाइफ टाइम लेना पड़ता है। मगर अलसी वैसा नहीं है, अलसी से जो है आदत नहीं पड़ती है। और अलसी नेचुरल सीड है, महाराष्ट्र में उसकी चटनी बना के खाते हैं। अक्की अलसी 1 चम्मच निकलने के बस वो जो है एकदम पेट साफ करता है। अगर आप पाउडर करके खाएंगे तो उसमें आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मिलेंगे, एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। अक्के निकलेंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए रात को जो है छाछ में या सैलेड के ऊपर जो उसका पाउडर बना के तैयार पाउडर करके नहीं रखने का, वो खराब हो जाता है। जैसा हम लोग इस्तेमाल करने का है, जब यूज करने का है तभी पाउडर करो, थोड़ा सा क्रश करो और जो है वो सैलेड के ऊपर डाल के खाओ, क्योंकि वो खराब हो जाता है बाय ऑन स्टोरेज। तो ऑयल सीड है वो इसकी वजह से। और अगर समझो उसका काढ़ा छोटे बच्चों को, 1 साल के अंदर के बच्चों को जब खांसी सर्दी होती है तो उसमें काम आ जाता है। पाइनएप्पल में जो है ब्रोमोलाइन करके जो है केमिकल है। ब्रोमोलाइन जो है
हमारे रेस्पिरेटरी क्लींसर है, रेस्पिरेटरी क्लींसर है। तो ये सब जो है प्रोटीज अपना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है इसमें, ब्रोमोलाइन। और व्हीट में मैंने बताया कि ग्लूटेन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लियाडिन नाम के 3 तत्व है। जो तीनों तत्व जो है डेंजरस है। एमाइलोपेक्टिन खास करके जो है डायबिटिक पेशेंट को हमको गेहूं इसके लिए बंद करना है कि वो जो है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास जो हमको इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उसको जो है इनहिबिट करता है। तो मेरे को लगता है मैंने काफी चीज मैंने बता दिया। टाइम की पाबंदी है। मैं हेलो जो है सर। किसी अगर सवाल है तो मैं हाँ, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं सर। हाँ बोला। हाँ सर, क्वेश्चन आंसर हाँ क्वेश्चन ले आंसर सकते हाँ हाँ चालू ले करो। सकते हैं। एक मिनट। Thank you, Kamath sir, for a wonderful talk. Food as a medicine and healing power of vegetarian food. Now, I would like to invite Alpa Mehta, a member of Kash Foundation, for the question answer round. Over to you, Alpa. Yeah, thank you, Pooja. Thank you so much and thank you, Kamath sir. हाँ। Lovely presentation again. सब लोग बहुत enjoy कर रहे हैं आपका। हाँ। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। क्वेश्चन आंसर जल्दी करो। मेरे हाँ को जी, हाँ जी। और 2-3-4 मिनट जो है डिटेल में सोयाबीन के बारे में बताना है। हाँ, यस यस सर, वो हम लोग अभी लास्ट में ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन लास्ट आंसर। क्वेश्चन वही होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें। डन 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 सर। 4 मिनट का। थैंक यू सर। हाँ। सर सबसे पहला क्वेश्चन है मेरी तरफ से, स्पेशली मेरा है हाँ। कि फ्रूट हम लोग 12 बजे से पहले लेना चाहिए, ऐसा कुछ रूल है क्या? हाँ देखो कहावत है, ए फ्रूट इट इन द मॉर्निंग इज गोल्डन। या आप 300 रुपया किलो सफरचंद लेके आएंगे और रात को खाएंगे, उसका सिर्फ गोबर बनता है और उसका पूरा फायदा लेना है 300 रुपए का, तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट में खाना है। ए फ्रूट इट इन द आफ्टरनून इज सिल्वर एंड ए फ्रूट इट इन आफ्टर सनसेट इज क्रैप। ओके। और Okay. खाना खाने के पहले फल खाना है तो हमको गैस नहीं होगा, और खाना खाने के बाद आप ये फल खाएंगे, फल खाने का समय कम लगता है, खाने का जो है टाइम ज्यादा लगता है। तो जो है जब तक खाना पचता नहीं है तब तक वो सड़ जाता है, तो उसकी वजह से गैसेस वगैरह जो है, ब्लोटिंग वगैरह जो हो जाता है। तो फल पहला खाना है और आधा घंटे बाद खाना खाना है। ओके सर। अच्छा सर, जो अलसी आपने बोला था खाने के लिए, वो हाँ। ऐसा है कि च्यू करके ही खाना है? नहीं च्यू करके नहीं, निगलने का है। 1 चम्मच अलसी निगलने का है, कब्ज के लिए जो है अगर लेना है तो निगलने का है। ओके सर। हाँ। ओके सर। आप मतलब फ्रूट और सैलेड, मतलब सैलेड में बहुत सारे लोग फ्रूट्स डालते हैं, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हम लोग मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, 2 फ्रूट आप में मिक्स नहीं कर सकते, फ्रूट सैलेड नहीं खा सकते। ओके ओके सर। अच्छा सर, फ्रूट जूस सिर्फ पी सकते, मिल्क शेक्स नहीं पी सकते। दही के साथ में, लस्सी के साथ में, दूध के साथ में जो है कोई भी फ्रूट मिक्स करना मना है। ओके सर। सर व्हाट इज बेटर टू ईट, व्हीट और राइस? राइस खा सकते हैं, Rice. बाजरा खा सकते हैं। हाँ ओके ओके सर। हाउ टू कीप लीवर हेल्दी? यस, लीवर का काम है फैट मेटाबॉलिज्म, उसको जो है डाइजेस्ट करने का काम है। तो फैट माने तला हुआ चीज नहीं खाने का, तेल का कम खाने का, नमकीन और स्पाइसी फूड कम खाने का, मिर्ची बिल्कुल नहीं खाने का। तो उसको जब आराम हम देते हैं और पानी पीने का भरपूर, और उसको विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी का जो है मिश्रण का जो है आपको उसको पीते रहने का। गाजर का जो सामना डाल के जो आप पियेंगे रोज, तो आपका लिवर को आराम देंगे। आप तेल नहीं खाएंगे तो अपने आप लिवर आपका ठीक हो जाएगा। ओके ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एप्पल स्किन के पे बहुत सारे वैक्स लिए अभी लगाए होते हैं। हाँ। तो वैक्स का मतलब स्किन हम लोग क्या अवॉइड करना चाहिए? देखो उसको क्या करने का है, वो डेट जो होता है, ऊपर का स्टॉक जो होता है, उसको धागा बांधने का, उबलते पानी में डुबा के निकालने का, ठंडा पानी में धो लेने का, वैक्स भी निकल जाता है, पेस्टिसाइड भी निकल जाता है। ओके ओके सर। सर विटामिन डी का किसी को बहुत डेफिशिएंसी आजकल में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो क्या लोग खा सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, माने उसको कैल्शियम की भी डिफिशियंसी है, तो उसको कैल्शियम रिच फूड लेने का। बाजरी का रोटी, जवारी की नहीं, बाजरी की रोटी, नाशनी का जूस जो नाशनी भिगा के जो है अपने को गुड़ और इलायची डाल के बढ़िया होता है, तो ये ब्रेकफास्ट में देने का रोज। तिल का जूस, तिल गुड़ का लड्डू में इतना कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो किलेशन होता है। बट आप ये दे सकते हो उसको, ड्रमस्टिक्स दे सकते हो। छाछ में जीरा थोड़ा भून के जो पाउडर करके रख देने का, 1 हीप टेबल स्पून फुल
जीरा पाउडर 1 ग्लास जो है छाछ में जो है दे सकते हो। सुबह में जो है चाय कॉफी के बदले में जो धनिया का जो है कड़ा बना के दे सकते हो, और ड्रमस्टिक्स उसको जो है रोज का बॉईल करके दे सकते हो। ओके ओके। अच्छा सर, अभी आजकल में चिया सीड्स बहुत मार्केट में आया हुआ है, सब डाइटिशियन बोलते चिया सीड्स, तो उसके बेनिफिट्स क्या है और अच्छे हैं क्या वो? नहीं, हम तो चिया सीड्स का जो है हम ये नहीं करते हैं, और जो मार्केट में आता है, क्योंकि क्या है, ये जो है इनिशियली जो है उसका फैट रहता है, एंड इट इज ओनली फॉर कमर्शियल व्हाट यू कॉल रीजन। यस यस। अच्छा सर, एक एक बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये, घर पे मतलब ये सारे लोग पूछ रहे हैं कि घर पे व्हीट ग्रास कैसे ग्रो करें, अगर किसी को करना है तो? देखो, घर में जो है व्हीट ग्रास आपको फुर्सत है तो आप कर सकते हो, कारण जो है कुदरत के अंदर जो तुम्हारे कबूतर हैं, कौवे हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, चूहे हैं, ये सब जानते हैं कि बाबा उसमें औषधि गुण है करके। तो आपको जो है 7 कुंडी रखना है, 7 कुंडी रख के जो है उसको संडे मंडे ट्यूसडे टू संडे करना है। फिर 1 चम्मच जो है गेहूं आज मैंने भिगो दिया रात को, सुबह में उसको कपड़े में बांध दिया, और थर्ड डे को जो उसको मिट्टी में डाल दिया। तो वो अगर समझो बुधवार है तो बुधवार का कुंडी में वो उगाने का, नेक्स्ट डे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, वापस थर्सडे को आएगा 8th डे ग्रास हो उखाड़ने का विद अलॉन्ग विद द रूट, कैंची से जो रूट काटने का, हाथ में पकड़ के नल के नीचे धो लेने का और चबा के खाने का। ओके सर। सर विटामिन के में कौन से फ्रूट इंक्लूड होंगे? विटामिन के सब हरी सब्जियां जो है उसमें विटामिन के मिलता है। ओके ओके सर। ये दूसरा है, विच घी इज बेस्ट? घी या घी गाय का घी। गाय का घी। और अलसी रोस्टेड रोस्ट करके खाना है? रोस्ट करके खाएंगे आप, उसका कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आपको कच्चा पाउडर बना के जो है चाट में डाल के या सैलेड में डाल के खाएंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलेंगे आपको। आप फ्राई करेंगे तो ओमेगा एसिड्स निकल जाएंगे, एसेंशियल फैटी एसिड्स। ओके। हाँ। तो ये रेडीमेड जो आते हैं अलसीज रोस्टेड, वो अच्छे नहीं है? वो जो है मुखवास करके खा सकते हैं आप, उससे आपको फायदा कुछ नहीं है। फायदा कुछ नहीं, फायदा सिर्फ व्यापारी को है। हाँ। ओके ओके सर, अभी ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत लोग मतलब क्वेश्चन है कि अगर रोज नींबू पानी पिएंगे तो उसकी खटास से पित्त होती है, तो वो क्या करें अभी? देखो, ये जो है ये आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त का मतलब क्या है। पित्त का मतलब क्या है? पित्त का मतलब है लिवर डिसऑर्डर, लिवर वीकनेस, उसको पित्त बोलते हैं। पित्त किस वजह से होता है? एसिडिटी से वजह से होता है। जब आप गर्म पानी में, जब एसिडिटी होता है, आपको ढेकर आना चालू हो जाता है, तकलीफ होती है। तो ऑयली फूड, नॉनवेज फूड ज्यादा खाने के बाद जो तकलीफ होती है, दारू पीने के बाद जो तकलीफ होती है, गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ो, पी लो। जब तक ग्लास में का पानी खत्म होता है तब तक आपका एसिडिटी दूर हो जाती है। ओके सर, पीसीओडी में पपाया अच्छा है क्या? पीसीओडी का और पपाया का कोई अपना कनेक्शन नहीं है। पपाया आप खा सकते हैं, पपाया आप खा सकते हैं। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में जो है पपाया नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन है, इसके लिए। ओके ओके सर। ओके, तो और एक है स्किन इशू पे, बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि रेड पैचेस और स्किन में बहुत डेंड्रफ हो रहा है। किसमें? स्किन में, बालों में सब डेंड्रफ ज्यादा हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वो डेंड्रफ क्यों होता है? एक तो आप अलग अलग टाइप के हेयर ऑयल्स, कॉस्मेटिक्स, हेयर कलर्स वगैरह लगाते हैं, तो डैंड्रफ और बाल झड़ना ये बड़ी बात नहीं है। अभी आपने को जो स्किन कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है। स्किन कैंसर ये ज्यादा 12 बजे के बाद में का धूप में घूमने की वजह से एक कारण है, दूसरा आपके रहन सहन की वजह से कारण है, और स्किन हेल्थ नहीं है। तो स्किन के लिए क्या जरूरत है? विटामिन ए की जरूरत है, विटामिन सी की जरूरत है, विटामिन ई की जरूरत है। ओके, प्लस जब तक सर्कुलेशन उधर पहुंचाने के लिए, उनको ब्रीदिंग के लिए जो है कोई नहीं, की माने कड़ी पत्ता चबा के खाना है। ओके सर, टोमेटो सीड के साथ लेना चाहिए या विदाउट सीड? सीड इज गुड फॉर द हेल्थ? टमाटो देखो, नॉर्मल आदमी टमाटो सीड्स के साथ में खा सकता है, सूप बना के भी खा सकता है, बॉईल करके भी खा सकता है। उसका जो है उसका वो लाइकोपीन जो है लेवल्स कम नहीं होते। ओके सर। सर विटामिन you said that we should get from garlic. Is there any substitute for the garlic, for the Jain people especially जो नहीं खाते garlic? देखो रिलीजन एंड हेल्थ डोंट गो टुगेदर। अभी आपको जो है बचपन में जो है आपने वाटर ब्रिज कंपाउंड जो है पिया होगा, तो हम सब लोगों ने पिया है बचपन में, अभी मिलता है कि नहीं पता नहीं है।
एलेक्ट्रिक नियोगडीन, हिपेटोग्लोबिन, ये क्या है? ये कषाय खाने का, गाय का, भैंस का जो है कलेजा निकाल के उसका टॉनिक बना के टाकी में भर के दिया आपको। ओके, हाँ, प्रिजर्वेटिव डाल के, और ये हमको दवाई बना के दिया है, तो हम तो Yes. आपको दवाई के तौर पे दे रहे हैं। लहसुन, लहसुन तो खा सकते हैं। यस यस 100% सर। सर और एक है सवाल कि पूरे बॉडी में एसिड हो रहा है, हाँ। तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, उनको एसिड जैसा फील हो रहा है? नहीं, अभी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, तभी जो है ब्रेथलेसनेस होता है, और इसका जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो माने एसिड बढ़ने का, तो उसकी वजह से जो है ढेकर आता है, इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होता है। ओके सर, विटामिन डी के लिए कौन सा फ्रूट आप सजेस्ट करेंगे? विटामिन डी जो है, विटामिन डी के लिए कोई भी फ्रूट की जरूरत नहीं, खाली धूप में बैठो, धूप स्नान। यस 100% सर। हाँ, ओके सर, दूसरा भी नेक्स्ट है कि अलसी पे बहुत सारे सवाल है कि अलसी हम लोग मुखवास में खा सकते हैं, वो आपने आंसर दे दिया है। पानी कितना पीना चाहिए उसके बाद? जितना पीना है, कम से कम दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए। बरसात के मौसम में भी, ठंडी के मौसम में प्यास कम लगते हैं, फिर भी 2.5 लीटर तो पीना ही पीना। सर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ये है कि यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है, तो कौन से फूड हम लोग? मैंने बोला आपको, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसके लिए जो है अपना दाल और नॉनवेज खाना तो टोटली बंद। मैं नॉनवेज के बारे में नहीं बात करूंगा। ये दाल जो है खाना बंद करो। इडली नहीं, डोसा नहीं, कोई भी दाल नहीं, उड़द दाल नहीं, तुअर दाल नहीं, मूंग दाल नहीं, खिचड़ी नहीं। दाल के बदले में आपको अंकुरित करके मूंग जो है इस्तेमाल कर सकते हो जड़ी में। तो जब अंकुरित करते हैं तो वो जो पानी जो जाता है उसमें यूरिक एसिड फॉर्म होने वाला जो है नाइट्रोजन सॉल्ट निकल जाते हैं। उतना ही नहीं, उसको आपको एडिशनल बोनस भी मिलता है। उसमें क्या मिलता है? विटामिन B12 मिलता है, विटामिन C मिलता है, प्रतिरोधक शक्ति भी आपकी बढ़ती है। ओके सर, विटामिन 3 की जो अभी लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग विटामिन D3 ले रहे हैं, उनको बोलो पैसा खर्चा मत करो, बहुत महंगा आता है, वो इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। धूप में जो है आधा घंटा धूप स्नान करो, सुबह 11 बजे के पहले, 7 बजे से 11 बजे तक जो धूप स्नान करो। मांगता है उतना, वो भी फ्री में, किसी को कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। विटामिन D3 D4 का इंजेक्शन भी काफी महंगा है। सर बहुत सारे लोगों का एलर्जी हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोले? स्किन एलर्जी हो या तो फिर डस्ट एलर्जी हो रही है? सुनो, एलर्जी जो है इज बेसिकली लिवर डिस्फंक्शन, लिवर वीकनेस। तो इसके लिए बाहर का खाना बंद करो, क्योंकि बाहर जो है आपका पार्ले हुए, ब्रिटानिया हुए, हल्दीराम हुए, गार्डन का फरसान हुए, सब लोग जो है पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पाम ऑयल जब तक सोयाबीन नहीं डाला जाता है तब तक पाम ऑयल वो नहीं निकलता है। इट इज मोर ऑफ 60% ऑफ सोया ऑयल। और ये लोगों को मालूम नहीं, मालूम है लोगों को, मगर ये जो पॉलिसी मेकर्स है उसमें पैसा है। पॉलिसी मेकर्स है, उनके जो है ये जो है जो बोलना चाहिए। और हम जैसे लोग जब ये हम प्रमोट करते हैं, गांव गांव में जाते हैं, जो है प्रचार प्रसार में जो बोलते हैं इसके सोयाबीन के खिलाफ हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे को मेरे एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ने बोला है, कहा मत तू राइटिंग में कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश करेगा, वो माफिया है, तेरे को उड़ा देगी। ओके 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 सर, सन बाथ जो हम लोग बोलते हैं ऑलवेज सन बाथ लेना चाहिए, वो इवनिंग पे और मॉर्निंग का टाइमिंग आप बता देंगे तो सबको बहुत फायदा होगा। शाम को 4 बजे के बाद ले सकते, 3 साढ़े 3 बजे के बाद ले सकते। ओके, 3:30 के बजे बाद। सुबह का मॉर्निंग का टाइमिंग? मॉर्निंग का 7 बजे से 11 बजे तक। 7 बजे से 11 बजे तक सर। ओके ओके सर। सर हेयर बहुत लोगों के हेयर फॉल की बहुत कंप्लेंट है, बहुत लोग यहाँ पूछ रहे हैं हेयर फॉल के बारे में, आप क्या बताएंगे? देखो सर का प्रॉब्लम है, वो सर का प्रॉब्लम फर्स्ट पेट की वजह से होता है। ये जिसको हेयर फॉल है उसको कब्ज होगा, उसका पीरियड्स, लड़की है तो उसका पीरियड्स इरेगुलर होगा, उसका पीरियड्स के टाइम पे जो उसका पेन होता होगा, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। एनीमिया होगा, उसको एनीमिया होगा, आयरन डिफिशिएंसी होगा, तो ये मालन्यूट्रिशन की वजह से भी हेयर फॉल होता है। ओके ओके सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पालक हम लोग ज्यादा खाते हैं तो गाउट इंक्रीज होता है? हाँ, देखो पालक एक ही हरी सब्जी है जिसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है, और हम पानी कम पीते हैं, हम पानी कम पीते हैं। तो रोज जो है ज्यादा जो आदमी पालक पनीर और पालक खाता है तो कैल्शियम ऑक्सीडेट जो है जमा होता है बॉडी में, और किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी गैल स्टोन हो सकता है। ये पत्थर जो बनता है खाना खा के, ये जो है ज्यादा करके जो है पालक की वजह से होता है। पानी आप पियो 3 साढ़े 3 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके सर। सर बहुत लोगों को वाटर रिटेंशन का बहुत प्रॉब्लम है अभी, तो उसके लिए कौन से फूड अवॉइड करना चाहिए उन्होंने? वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ किडनी।
किडनी सही काम करेगा, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है, खाली यूरिन निकालने का नहीं, फिल्टर करने का नहीं, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस, वाटर बेस्ड बैलेंस। पोटेशियम ज्यादा है और सोडियम कम है तो वो दोनों बैलेंस करना। पोटेशियम ज्यादा पोटेशियम वो निकाल देना पेशाब में, ज्यादा सोडियम है तो ज्यादा सोडियम निकाल देना, पोटेशियम बैलेंस करना, ये रिस्टोर करना, बैलेंस करने का, इट्स कॉल्ड एज रिस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेसिस, ऑटो बैलेंसिंग। ये काम किडनी का है। या ओके ओके सर, अभी है ना सब लोग ये जूसेस पे बहुत आ गए हैं, डाइट कर रहे हैं वो, तो वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं, मैंने बोला ना फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स नहीं करना। नो, ओके, ठीक है सर। और एक क्वेश्चन है कि ब्रोकोली थायराइड के लिए बुरा है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि Yes, ये okay. जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है हाइपोथायराइड, तो उसमें जो हम क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, जैसे मैंने बोला था लेक्चर में, जब भी बोला कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकोली है, बीन्स है, हरा अपना नोलकोल है, और अपना फ्रेंच बीन्स है, ये सब जो है हम मना करते हैं। ओके सर, एक कल का क्वेश्चन रह गया था, वो वापस पूछ रहे कि कैस्टर ऑयल जो है आपने कल बोला था वो कैसे यूज करना है, मतलब हाँ। कितना लेना है, महीने में 50 लेना ml, है? 50 ml एडल्ट को जो है, हाँ। जो 15 साल से ऊपर है, हाँ, उसको 50 ml देना है। 15 साल और 15 साल के ऊपर को जो 50 ml लेना है। ओके। हाँ, दोपहर को, और साल में एक बार लेना है, जून महीने में बारिश के पहले लेना है। ओके। हाँ, और मतलब वीक में लेना है, 15 दिन में लेना है, वो भी पूछ अरे रहे हैं? साल में एक बार, साल में एक ही बार लेना है? साल ओके, एक ही परफेक्ट। बार, एक ही बार। ओके। ये खाद्य तेल है, इट इज वेजिटेबल ऑयल नहीं, इट इज एडिबल ऑयल, खाद्य तेल है। क्योंकि आप तो जो है गांव में, गुजरात में वगैरह जो है, आपका चपाती का आटा बनता है तो मोहन करके जो है कैस्ट्रोल डाला जाता है। सर वीट हेल्थ के लिए अच्छा है क्या? कल भी ये किसी ने पूछा था, आज वापस बहुत वीट लोग जो पूछ रहे है, हैं। वीट जो है डायबिटिक पेशेंट को खाना नहीं चाहिए, हम लोग भी नहीं खाना चाहिए। हम्म, कब्ज होने का जो है एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है वीट। वीट माने ब्रेड नहीं, बिस्किट नहीं, केक्स नहीं, कुकीज नहीं, नान खटाई नहीं, गेहूं का कोई भी चीज नहीं, मैदा का कोई भी चीज नहीं। हाँ, ओके सर, आपने बोला कि स्प्राउटेड मूंग जो होते हैं, अंकुरित मूंग, वो हाँ। कुक करके खाना या कोई भी बोला उसको कुक किया, रॉ कुक करके हाँ। खा सकते हैं, मगर कुक किया विटामिन B12 और हम्म। विटामिन सी नहीं मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ओके ओके सर, और सोराइसिस, अभी स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत क्वेश्चन पूछे, सोराइसिस देखो, है, गाउट एक्जिमा है, है। सोराइसिस है, सुनो, गाउट हाँ। है, सोराइसिस है, इरिटेबल अपना क्या बोलते हैं उसको, एक्जिमा। ये नहीं, एक्जिमा नहीं, ये सब जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। इम्यूनिटी Okay. हमारी कम होती है, उसकी वजह से होता है। ओके। तो बहुत सारी चीज है, और वो चीज है, तो जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये सब हो जाता है। कि हम जो है गाड़ी पट्टे पे लाने के लिए 3 महीने का जो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो पहले Okay. एस्टेब्लिश करना पड़ता है किस वजह से है। वी ट्रीट द कॉज, नॉट द डिजीज। ओके सर, एक का क्वेश्चन है, शीत पित्त है तो क्या करें? पित्त का मतलब है लिवर डिसफंक्शन, हम्म, उसका वीकनेस है, तो उसके लिए गाजर का जूस, गाजर आंवले का जूस रोज पीना है। हम्म, तेल का तला हुआ चीज टोटल बंद करना है। नमकीन और चटपटा बंद करना है 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। गन्ने का जूस पीना है रोज, तो अपने आप जो है, जो आपका लिवर आराम दो तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा सर, मेरे को 2 मिनट पार्किंग। हो गए। ये अपना सोयाबीन से कम करेंगे, टाइम जो है हाँ 1 मिनट रहा है। मैं सोयाबीन सर, के बारे सर में सिर्फ बोलता हूँ। या सर, आपको 5 मिनट चाहिए ना सोयाबीन के लिए? हम लोग 5-6 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ओके, हाँ। सर, पार्किंसंस लोग जिन्हें है प्रॉब्लम, उनके लिए आप कोई डाइट या कुछ सजेस्ट कर सकेंगे देखो, थोड़ा शॉर्ट में? पार्किंसंस जो है वो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, यस एक्चुअली ओल्ड एज में होता है। यस। तो जो है नॉर्मली 65 के बाद में नेचुरोपैथी में हम ट्रीटमेंट लोगों का नहीं करते, जिंदाल में आपको एडमिशन नहीं देते। अगर पेशेंट हमारे पास चल के आता है तो हम कोशिश करते हैं, बट जो है पेशेंट को जो है गोली खा के जो है वो सिंडोपा एमडोपा वगैरह जो दिया जाता है, यार हैप्पी, वो गोली बंद करने के लिए तैयार नहीं होते, और जब तक वो गोली बंद नहीं करते तो तब तक हम उसका हमारा जो है ट्रीटमेंट कर नहीं सकते। ओके ओके सर, अभी आपको भी टाइम चाहिए थोड़ा, तो मैं आपको भी दे रही हूँ 5-10 मिनट्स। आप Okay. सोयाबीन के बारे में आपको जो बताना था इम्पोर्टेंट। पहले रेणुका जी का जो है हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट है आपके हाँ। कैश फाउंडेशन के, तो Yes. जो है उनका जो एक क्वेश्चन है, अर्टिकेरिया इज स्किन डिसऑर्डर। अर्टिकेरिया में जो है व्हील्स होते हैं, जो है बड़े बड़े जो अपने दाने नहीं, वो जो बड़े बड़े व्हील्स माने कॉइन जैसे जो है
अपना जो है बॉडी में गिरते हैं और उसका जो इचिंग भी रहता है, उसको हम वील्स बोलते हैं इंग्लिश में, WEALS। तो ये जो है लिवर वीकनेस की वजह से होता है। इट इज कॉल्ड, इट इज बेसिकली जो है एलोपैथी में उसको एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी हमारे नेचुरोपैथी में नहीं है। एलर्जी मीन्स लिवर वीकनेस। हम लिवर को आराम देंगे तो आपका एलर्जी एकदम निकल जाता है। ओके ओके सर, अभी आप अपना सोयाबीन के बारे में आपको जो बताना है। सोयाबीन इसके लिए बताना जरूरी है कि सोयाबीन इज वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है? ये हम बच्चों को जो देते हैं, जो 2 साल 3 साल के बच्चों को हाई प्रोटीन करके उसका सोया मिल्क देते हैं, ये देते हैं, तो वो बच्चे को जो है, अगर लड़की है तो बाय द टाइम शी इज 6 उसका पीरियड्स आना चालू हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है फाइटोएस्ट्रोजन, बड़ी मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजन है, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन, अपना जो बोलते हैं अपना प्रोजेस्टेरोन और एड्रेस्टेरोन करके जो फीमेल हार्मोन्स है, ये फीमेल हार्मोन्स उसमें है, तो दे आर नोन एज प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन। तो ये फाइटोएस्ट्रोजन जो है ये नुकसान कर सकते हैं। दूसरी बात है उसमें डेडिजाइन है, जेनिस्टाइन है, ये हम बराबर है, ये जो है हमको कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है सुविधा देता है, मगर ये बच्चों को तो हम ये बिल्कुल नहीं देंगे। कैंसर पेशेंट को देना अलग है और बच्चों को देना अलग है। हमने पहले का था, मेरे चार्ट में था, अभी ये जो चार्ट में से निकाल दिया है। अच्छा, फिर उसमें जो है एल्यूमिनियम, जैसे आपने जो है पल्सेस है, कौन से है, उड़द है, मूंग है, मटकी है, चौली है, सिंगदाना है, इनमें जो है थोड़ा सा फाइटिक एसिड, जो उसमें का लाइफ जो है जिंदा रखने के लिए वो लगता है फाइटिक एसिड, और इसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फाइटिक एसिड है। और फाइटिक एसिड नुकसान क्या करता है, हमारे जो है रेयर मिनरल्स है, जैसे मैंगनीज है, क्रोमियम है, वो जो इंटेस्टाइन में से एब्सॉर्प्शन जो होता है, एसिमिलेशन जो होता है, उसको प्रिवेंट करता है फाइटिक एसिड। तो जो है फाइटिक एसिड की वजह से जो है मैं इसके लिए ना बोलता हूँ। उतना ही नहीं, अपने सोया मिल्क में या सोया प्रोडक्ट में, वो टोफू हुए, मिठो हुए, जो भी है, उसमें बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम रहता है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। एल्यूमिनियम में इमीडिएटली आपको कुछ नहीं होगा, मगर एक बॉडी का आपका जो ये है कि एल्यूमिनियम जितना भी आप खाएंगे तो वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता, फिर जाता है किधर, वो लिवर में जाके डिपॉजिट होता है, पहले मिलीग्राम्स में, फिर मिलीग्राम्स में, फिर थोड़ा उसमें बढ़ के जो है मिलीग्राम्स में जाता है, माइक्रो मिली से मिलीग्राम्स में जाता है। मिलीग्राम्स में जब ग्राम्स के आसपास आता है तभी जो है आपको तकलीफ होना चालू हो जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है लिवर का बायोप्सी करना पड़ेगा। लिवर का बायोप्सी में मालूम पड़ता है लंप है, और उसमें जो है सोनोग्राफी वगैरह करके, MRI वगैरह करके बोलते हैं आपका सर्जरी करके उधर कुछ ट्यूमर है, वो बायोप्सी करना पड़ेगा। वो बायोप्सी कर दिया तो आपका जो है पंचनामा हो गया, दैट लिवर कैंसर, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर कैंसर एल्यूमिनियम। तो घर में एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल नहीं करने का, एल्यूमिनियम के वेसल का इस्तेमाल नहीं करने का, नॉन स्टिक का भी जो है इस्तेमाल नहीं करने का, एल्यूमिनियम का कोई भी चीज जो इस्तेमाल नहीं करनी। ओके सर। कुकर भी जो है हमने जो है पुराना एल्यूमिनियम का जो इंडेलियम का था वो देखे हमने सील कराया, बिकॉज मालूम पड़ने के बाद। या ओके सर, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ले रही थी हूँ। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि शाम को उनका पेट फूल जाता है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? गैस हो जाता है तो इंडाइजेशन की वजह से गैस हो जाता है, या कब्ज है तो गैस हो जाता है। कब्ज में क्या होता है, इंटेस्टाइन्स में जो है वो रॉट हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसमें गैसेस ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है और जो है अपना ऊपर आ जाता है, उसको जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर आ जाता है, पेट में आ जाता है। पेट में ऑलरेडी एसिड है, तो एसिड और कॉन्सेंट्रेट होता है, तो पेट में जलन चालू होता है शुरुआत से, फिर बाद में ब्लोटिंग चालू हो जाता है, फिर बाद में ढकार आना चालू हो जाता है, बेल्चिंग चालू हो जाता है। और उसके लिए तुरंत जो है आप गर्म पानी में नींबू निचोड़ के जो पिएंगे तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ओके सर, बहुत लोगों का ये इश्यू है कि सुबह उठते हैं तो उनकी बॉडी थोड़ी स्वेलिंग होती है। हाँ। तो वो क्यों, वो व्हाट इज द रीजन? वन ऑफ द रीजंस कुड बी सॉल्ट का जो है, या दूसरा रीजन हो सकता है थायराइड हो सकता है, हार्मोनल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके सर, ये नॉनस्टिक वेसल्स बहुत लोग पूछे, बहुत अभी घर में सब नॉनस्टिक वेसल यूज कर रहे हैं, तो इट इज गुड?
नहीं, नॉन स्टिक वही मैंने बोला, इट इज टेफ्लॉन नहीं। कोटेड। Yeah. जब भी उसमें से धुआं आता है, हाँ, धुआं जब भी आता है, इट इज कंटेन्स कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग फ्यूम्स है वो। और वो आप जो उसके ऊपर डोसा या कुछ बनाएंगे तो वो जो फ्यूम्स जो उसके साथ में मिक्स होएगा तो आपके पेट के अंदर जाएगा, आपका लिवर उसको बराबर उसको जो उसको भी टफ होएगा वो निकालने के लिए बाहर। तो अगर नहीं निकलता है तो बॉडी में रहेगा, एक कोने में बैठा रहेगा, फिर बाद में थोड़ा वो ज्यादा होने के बाद में जो है कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। यस यस इट इज सर। और या सर, हील पेन भी बहुत लोगों को हो रहा है। क्या तो heel pain? हील पेन होता है जब भी सुबह उठते हैं ना, तो उनको हील में ऐसे पिंच जैसा होता है। हाँ, ये नॉर्मली क्या होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, नंबर 1। नंबर 2, एयर कंडीशन रूम, हाँ, सर्कुलेशन के ऊपर जो उसका असर पड़ता है, माइक्रो सर्कुलेशन नहीं होता है। ओके। और thirdly, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाँ, लैक ऑफ सनलाइट। तो ये जो है, ये जो चीज जो है शरीर को जो है आपको सावध करती है, ये सिग्नल है कि बाबा समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, टेक केयर। हाँ, सर दुखता है कभी भी तो क्रोसिन उसका सोल्यूशन नहीं है। सर दुखता है इसका मतलब पेट बात कर रहा है। पेट में ये मतलब क्या है, वो आंतड़ी हो सकती है, कब्ज भी हो सकता है, लिवर भी हो सकता है, पैंक्रियास भी हो सकता है, स्प्लीन भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है। सर दुखता है इसका मतलब ओवरी भी हो सकता है, पेट में जितने भी ऑर्गन है वो बात करते हैं। ओके 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 सर। अभी मैं ज्यादा तो नहीं ले रही हूँ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अपना चल ही रहा है, सब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन में एक लास्ट आप या एक काम कौन सा करो। कढ़ाई सर, एक हम लोग वो तो पूछ ही लेंगे, कौन सी कढ़ाई सब बोल रहे हैं, लोखंड कुकिंग की, वाले सब लोखंड की। लोखंड की, हाँ। यस यस सर, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। हाँ, एक जो है काश फाउंडेशन का एक ग्रुप बनाओ और काश लोग जितने भी आपके मेंबर्स, तो उनको ग्रुप में डालो और जो क्वेरी होती है तो मेरे को भेज दो, कोई भी एक आदमी। और वो जो है रात, क्योंकि क्या है दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता और मेरे को मना है, मेरा काम के लिए जो है मेरे को जो है रेडिएशन की वजह से मेरे को मना है। तो रात को 10-11 बजे में जो है आधा 1 घंटा निकाल के जो है मैं आंसर करूँगा। सर डेफिनेटली, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लिख के आपको भेज देंगे, आप हमें बता देना। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, बहुत ही एंजॉयबल। एंड आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही रहिए, आपको इतने नॉलेजेबल आप है। थैंक यू सो मच। ओके पूजा, यस यस पूजा, ओवर टू यू। Thank you, Alpa Mehta. Thank you. Thank you. Thank you, Kamath sir. हाँ, thank you very much. सर, आज आपने जो हमें महत्वपूर्ण बातें बताई आहार के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आहार हमें जीवन कैसे हम लोग बिताएंगे ये बताया, आहार से हम क्योर कैसे हो सकते हैं ये आपने बताया। हम आहार खाली खाना समझ के खाते थे, अभी इससे हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जैसे अपने फल है, फ्रूट, वेजिटेबल्स है, होम रेमेडीज आपने इतनी अच्छी अच्छी बताई, जो हम खाली खाना है बस यही सोच के खाते थे, लेकिन अभी ये पता चला कि इससे हम क्योर कैसे हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो किसी को पता नहीं है, आपने बताया। धूप, पानी, अपना सूरज की धूप से हम कितना क्योर हो सकते हैं ये आपने बताया। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी गाइड, थैंक यू फॉर योर गाइडलाइन सर, थैंक यू वेरी मच। Pooja, give me 1 minute. Give me 1 minute. Okay sir. In the first place, I would like to thank all the participants who have attended this webinar. Most importantly, I would like to thank Dr. Jadhav for being a young entrepreneur and coming out with such a webinar and such a activity of his what you call the foundation for the purpose of health, which is the prime requirement for our country today. I am thankful to all of you, Pooja, to Alpa, to Mr. Dr. Kalkesh, and most importantly, Renuka, my friend. So, most of the others there in the audience are also my friends. But then, in general, I thank you all because my mission is healthcare to promotion and propagation of nature cure and yoga in the country to start with. Wherever I go, I talk only naturopathy and yoga. क्योंकि हर एक विषय में जो है बात करने के लिए भंडार है, लोगों के पास वक्त नहीं होता है। 1 घंटे से ज्यादा मैं बात करूं तो फिर लोगों को बोर होना चालू हो जाता है। एनीवे, इसमें तो रोज है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, रोज मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज पेशेंट लोगों से सीखने को मिलता है, तो जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ जो नया सीखता हूँ। एनीवे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you very much sir. Before we wind up, we would like to extend our gratitude towards today's speaker, Dr. Kamath sir. Thank you all the viewers for participating so actively.
Tomorrow on 11 September 2020, we will be hosting our 15th webinar in which Dr. Renuka Vyas will be talking on tuning of alkaline and acidic sources, sharp at 5 p.m. You can visit our website www.kashfoundation.org. You can even follow us on Instagram and Facebook. Myself, Pooja Malkar, team member of Kash Foundation, signing off. Thank you very much.